کل جمعۃ المبارک ہے، آپ نماز کے لیے شہزادوں کے ساتھ ہی جائیں گے، کیوں ایسا ہی ہے نا؟ سلیمان، کیا ہوا ہے؟ بیاضت بہت پشیمان ہے، آپ دونوں کے درمیان جو بات ہوئی ہے اس پر رنجیدہ ہے وہ۔ رنجیدہ ہونے کے بجائے اپنے رویے کی درستگی پہ توجہ دے تو بہتر ہوگا۔ اتنے عرصے میں بھی وہ اپنی اصلاح نہیں کر سکا، لگتا ہے انا کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ مانتی ہوں وہ قصوروار ہے، لیکن سارا قصور اس کا نہیں ہے۔ بیاضت کو آپ کتنا چاہتے ہیں معلوم ہے، لیکن وہ یہ بات سمجھ نہیں پا رہا، اور شاید اسی لیے اس کو یہ لگتا ہے کہ آپ کو اس پر اعتماد نہیں ہے۔ کیا مطلب اسے غلطی پر میں نے مجبور کیا تھا؟ نہیں، میں تو صرف بیاضت بہت محبت کرتا ہے آپ سے، اس کی محبت بے پناہ اور بے مثال ہے، اسی وجہ سے آپ کی نظروں میں خاص مقام حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرتا ہے وہ۔ یہ مناسب نہیں ہو رہا، اس کا یہ غصہ، اس کی یہ خودسری میری رنجیدگی کا سبب ہے۔ اس پر کوئی مصیبت نہ آ جائے، میں ہر وقت یہی سوچتا رہتا ہوں۔ اللہ ہم پر رحم کرے۔ آپ کا سایہ جب تک ہمارے سروں پر سلامت ہے، ہم میں سے کسی کو کوئی ضرر نہیں پہنچ سکتا۔ میں نے مطالعے میں خلل ڈال دیا۔ شب کے وقت ویسے بھی لفظ دھندلے دکھائی دیتے ہیں، بعد میں مطالعہ کر لوں گا۔ آپ چاہیں تو میں پڑھ کر سنا دوں۔ میری آنکھیں اب بھی شاہین کی آنکھوں جیسی تیز ہیں۔ کیا آپ مجھے کتابیں تم پڑھ کر سنایا کرو گی؟ کیا ہم ویسے بھی ایک دوسرے کے لیے نہیں ہیں سلیمان؟ ہماری سانسیں، ہمارے دل ایک نہیں ہے کیا؟ با ادب شہزادے بیاضت تشریف لا رہے ہیں۔ والدہ، آپ نے مجھے یاد فرمایا؟ تم بھیس بدل کر بازاروں میں گھوم رہے تھے، اور وہ بھی ہمارا کوئی محافظ لیے بغیر۔ میں اب بچہ نہیں ہوں والدہ۔ اگر ایسا ہے تو ایک شہزادے کی طرح رہو۔ میں بابا اور تمہارا تعلق خوشگوار بنا رہی ہوں، اور تم ساتھ خریدتے پھر رہے ہو۔ حور جہاں کا کیا کام تھا تمہارے ساتھ؟ اس میں کیا حرج ہے والدہ؟ اسے بس ایک ساز ہی تو دلانے گیا تھا میں۔ اتنے آغاؤں کے ہوتے ہوئے کیا ایک تم ہی رہ گئے تھے؟ تم کیسے اتنی لاپرواہی برت سکتے ہو؟ بابا کی سماعت تک پہنچ گئی تو جانتے ہو کہ کیا ہوگا، اندازہ ہے تمہیں؟ آپ چاہیں تو بتا دیں انہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ بابا نے سلیم کو تم پر ترجیح کیوں دی تھی، یہ سوال کیا تھا نا تم نے مجھ سے؟ تو سبب یہی تھا، صرف اسی وجہ سے بابا نے تمہیں تخت نشین ریاست نہیں بھیجا تھا۔ وہ حق پر ہے، وہ تم پر کیوں کرے بھروسہ؟ اپنی لاپرواہی دیکھو۔ آپ مطمئن رہیں والدہ، بابا کے اور آپ کے دل کا شہزادہ منیسا میں تخت نشین ہے۔ تم ہی ذرا اس سے بات کر کے دیکھو مہرما، ویسے بھی وہ میری بات نہیں سنے گا۔ کیوں ایسا کہہ رہی ہیں والدہ؟ بیاضت کو آپ نہیں جانتی کیا؟ بہت حساس ہے وہ۔ اس نے میری ناراضگی مول لے لی ہے۔ تم بات کرو اس سے، اس کے بعد میں بھی بات کر لوں گی پھر۔ ملکہ، کیا ہوا عفیفہ خاتون؟ لقمان آغا کچھ دیر قبل آئے تھے، شہزادے بیاضت چلی گئی ہیں۔ آقا سے ملاقات کر کے وہ پائیں باغ کی جانب گئے ہیں۔ بیاضت
मलिका। कौन है ये फरहत आगा, जानते हो क्या तुम? मालूम नहीं मलिका, लेकिन सोकलो के कहने के मुताबिक आका को आगाओं के मुतालिक मालूमात फराहम कर दी गई थी। इंतखाब उसी लिहाज से किया गया है। आला, जैसा कि तुमने देख लिया रुस्तम पाशा, दुश्मन अपने ही खोदे हुए कुएं में बारी बारी खुद ही गिर रहे हैं। अली आगा मर चुका, फिनैरी ज़ादे चला गया, बारबुरुस की बात करो तो वो भी नहीं बच सकेगा। बहरी बेड़े की कमान हमारे किसी आदमी के पास होना शर्त है मलिका। अमीरुल बहर पाशा का कोई बेटा या तुर्गत रईस आ गया तो वो भी उन्हीं की पैरवी करेगा। इतनी मेहनत हमने इसलिए नहीं की थी रुस्तम पाशा। तुम इस सौदे के लिए आदमी तलाश करो और मैं उसका नाम आका के सामने पेश करूंगी। क्या जरूरत पेश आगे कुथाया जाने की तुम्हें जहांगीर? क़यादत ने बुलाया है क्या? रवानगी के वक्त उसने जरूर कहा था और कब से मैं भी उसके पास जाना चाहता हूँ। कुथाया से मनीषा भी चला जाऊं, शायद कुछ घूम भी लूंगा। यहाँ से दूर रहना मेरे लिए बेहतर होगा। ये मुनासिब वक्त नहीं, मुनासिब वक्त पे मैं भी साथ चलूंगी तुम्हारे। मैं मजीद इंतजार करना नहीं चाहता। आप तो जानती हैं मेरी सूरत हाल की वजह से रियासत में तैनात नहीं किया जाएगा। ऐसी हालत में मैं महल में कैदी की तरह रहने से तंग आ गया हूँ। आप इतनी खुश लग रही हैं, जरूर कोई अच्छी खबर है। नूर बानो का इंतखाब करके मैंने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया। 1-2 महीनों में ही सलीम को राह रास्त पर ले आई और अब माशाल्लाह वो उम्मीद से भी है। आखिरकार मेरे पिसर के हाँ भी तिफल होगा। मुबारक हो मलिका। शुक्रिया। कितने बरसों के बाद मेरी ये दिली आरज़ू पूरी हुई है। फारिहा, जल्दी से ऐलान करवा दो, मेरे पिसर से नस्ल जारी रहेगी, सब जान लेगी बात। आपका जो हुक्म मलिका। खिजर रईस पाशा के बारे में कोई खबर है? तुमने कहलवाया है सुंबुल से? वो सेहतयाब हो गया और आका ने भी उसे बहरी बेड़े पर अपनी जिम्मेदारी निभाने का हुक्म दे दिया है। शहजादे से जाकर खुफिया मुलाकातें कर रहा है वो। उसे तख्त पर बिठाने के लिए साजिश पर साजिश कर रहा है और हम उसे उसकी जगह से हटा नहीं पा रहे। आका का जहन क्या सोचता है ये मालूम करना मुश्किल है, लेकिन अमीरुल बहर पाशा को शहजादे मुस्तफा के साथ पेश आने वाले हादसे के सबब गहरा जख्म लगा है और हम उस जख्म को हरगिज़ भरने नहीं देंगे। क्या करेंगे फिर? मेरा ख्याल है अमीरुल बहर पाशा का आखिरी वक्त आ गया है। मुनासिब वक्त देखकर उनको उनकी शानदार हैसियत के मुताबिक रुखसत कर दिया जाएगा। को डाल दूंगा। सुलेमान, सलीम के कारनामों का इल्म हुआ तुम्हें? खैरियत तो है, क्या हुआ है? बाजार में भेस बदलकर घूमते हुए एक दुकानदार को मौत के घाट उतार दिया। उससे भी बुरा ये किया कि हादसे को मिट्टी में दबा दिया। किसने बताया आपको ये सब? काजी से शिकायत की गई थी, लेकिन अब क्या हिकमत थी कि शिकायत वापस ले ली गई और गवाहान को भी खामोश करा दिया गया। यह हादसा कैसे हुआ ये तो मालूम नहीं, लेकिन ऐसे बिल्कुल अचानक वो कैसे किसी की जान ले सकता है? सलीम को अय्याश कहा उस गाफिल ने। औरत की खलबत का दिलदा था। अफसोस, एक शहजादे को क्या ऐसा होना चाहिए? कोई भी मेरे पे सर पर इल्जाम नहीं लगा सकता। हुर्रम, खता की होगी, लेकिन ऐसे घिनौने इल्जामात उस पर आयद नहीं किए जा सकते। वो बहुत अरसे पहले शराबनोशी तर्क कर चुका है। मुझे उसके हरम के निजाम की हर खबर रहती है। अनकरीब साहिब औलाद भी होने वाला है। इसका सबब जो भी हो ये सब कबूल नहीं किया जा सकता। मेरी औलाद इंसाफ कायम करने से रूगर्दानी करेगी तो मैं और अवाम उसके एहतराम करने का ख्याल दिल में कैसे लाएंगे? हुर्रम, रोज़े महशर में अल्लाह ताला के सामने किस मुंह से जाऊंगा? इस दुनिया का निजाम कैसे कायम रख पाऊंगा मैं? शहजादों से हमेशा खताएं होती रहती हैं सुलेमान। हर कोई अक्ल व दानिश के मशवरे का मोहताज रहता है हर दौर में। सलीम पर आयत जिम्मेदारी बहुत भारी है। वो ना तजुर्बेकार है। मुस्तफा ने भी इस उम्र में अपनी ना तजुर्बेकारी के सबब कई खताएं की, आपको मालूम है। हर खता की एक सजा भी होती है हुर्रम। वो चाहे मेरी औलाद ही क्यों ना हो, मैं उसे अच्छा करार नहीं दे सकता। उसूल सबके लिए बराबर है। कोई मेरे इंसाफ से रियायत हासिल नहीं कर सकता।
ये लो, इसे नूर बानो को भेज दो। आपका जो हुक्म मलिका। मलिका माजरत चाहता हूँ, लेकिन आपको कुछ पशेमान देख रहा हूँ, इसकी वजह क्या है आखिर? सलीम के साथ मनीषा में एक हादसा रुनमा हुआ है। नूर बानो ने मुझे उस मसले के खत्म होने का बताया था, लेकिन वो आका की समात तक पहुंच गया। मैंने खातून को मोहतात रहने का लिखा है, इसमें नसीहत की है। समझ गया मलिका। संबुल, हुक्म दीजिए मलिका। आज के बाद सलीम और बयासत की हर खबर सबसे पहले मुझे दी जाएगी। उनकी जानिब से आने वाला मकतूब पहले मेरे पास पहुंचना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? आका के इतने मुहाफिजों से छुपकर कैसे ला सकता हूँ? लुकमान आका से कहो, वो ये मसला हल कर लेगा। आपका जो हुक्म मलिका। शहजादे जहांगीर तशरीफ ला रहे हैं। जहांगीर, तुम्हारी जल्द वापसी की तवक्को नहीं थी। अच्छा किया जो लौट आए, फिक्र थी मुझे तुम्हारी। बयाज़त कैसा है? आफियत से होगा? वो ठीक है वालिदा, रियासत के मामलात में काफी मसरूफ है। तुम इतने उदास क्यों हो? और ये तुम्हारा चेहरा क्यों इतना मुरझाया हुआ है? क्या भाई से झगड़ा हुआ है? बेटा क्या हुआ है, बताओ मुझे। कुथाया के सफर के दौरान मुझे काफी तकलीफ शुरू हो गई थी वालिदा, उस वजह से वापस आ गया। मुझे लगता है कोई और बात है। और क्या बात हो सकती है? जिंदगी पिंजरे में गुजारने वाले परिंदे को आजाद करने तो वो नहीं रह सकता अपने पिंजरे के बगैर वालिदा। मुझे भी महल की याद आई और आपकी भी, इसी वजह से मैं वापस आ गया। इसके अलावा और कोई वजह नहीं। क्या करना चाहता है मुझे समझ नहीं आ रहा। अपनी अकल खो बैठा है। शहजादे सलीम मोहतरम है क्या? हाँ, सलीम और बयासत। इस हादसे के फौरन बाद बगैर मुत्तला किए बयासत सलीम की रियासत किया था। सलीम ने इस पूरी सूरत हाल की तफसील लिखी है इस मकतूब में। हाँ? मलिका, ये क्या किया आपने? आका के पास भेजना था ये मकतूब। हुरजहां, वालिदा, आप यहाँ? मलिका, शहजादा बयाज़त मोहतरम, वो जहां सुल्तान से मिलने के लिए खुफिया तौर पर पाया तख्त रवाना हो चुके हैं। मैं उन्हें रोक नहीं सका। शहजादे के पाया तख्त पहुंचने से पहले ये मकतूब हुरम सुल्तान को मिल जाना चाहिए। फारिहा, वो जहां से अपनी नजर बिल्कुल न हटाना। खैरियत तो है शहजादी, इस तरह कहाँ जा रही हैं? वैसे तुमने मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर कर दिए हैं। तुम ये कैसे कर सकते हो? तुम तो मेरी सबसे बड़ी उम्मीद हो। एक दो रोज ठहर कर वापस चला जाऊंगा वालिदा, किसी को पता नहीं चलेगा। तुम इस कदर लापरवाह कैसे हो सकते हो? तुम जो कर रहे हो वो बहुत खतरनाक है। वापस जाना होगा तुम्हें। रात की तारीखी फैलते ही वापस चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो कोई देख ले तो। वालिदा, हुरजहां से मिले बगैर मैं नहीं जाऊंगा। बयाज़त, वो जहां कौन है ये जानते हुए भी ये बात कर रहे हो तुम? वो उस खानदान से मंसूब है। इब्राहिम पाशा और खजीना सुल्तान की दुख्तर है वो, और ये रिश्ता तुम दोनों के दरमियान होना कतई नामुमकिन है। अगर तुमने ये सोचा भी तो मैं आग कर दूंगी, और अगर आका को पता चल गया तो जान ले लेंगे वो। अफीफा खातून। मलिका, शहजादी, आका ने आपको फौरी तौर पर तलब फरमाया है। आपको कैसा मालूम हुआ वालिदा? मेरे इस्तांबुल में होने का किससे मालूम हुआ? तुम्हें आते हुए देखने वालों ने खबर कर दी थी। तो फिर बाबा को कैसे मालूम हुआ? फातिमा सुल्तान ने बताया होगा मेरे ख्याल में। फातिमा सुल्तान क्यों बताएंगी? वो जानबूझकर हुरजहां को आग में नहीं झोंकेंगी। उस पर इतना यकीन मत करो।
तुम क्या समझते हो कि वो उसे बगैर सोचे समझे यहाँ लाई होगी? जाहिर है कि मेरे बेटों पर मुसल्लत करना चाहती थी। हूर जहां का इस मसले से हरगिज कोई ताल्लुक नहीं है। वो मासूम है, कम से कम मेरी तरह मासूम है। तुम कैसे मासूम हो गए? मनीषा खुफिया तौर पर जाकर अपने बराबर को धमकी दी है तुमने। दरअसल उसने मुझे धमकी दी थी। जो कुछ उसने किया अगर सुन ले मैं तो... हर बात जानती हूँ, लेकिन आका नहीं जानते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारे जाने की खबर नहीं हुई है। और अब अगर पता चल भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें वैसे भी बार बार गलतियां करने में मजा आता है बहुत। आप बरहक हैं वालिदा, खता पर खता कर रहा हूं मैं। आका मुझे यूं भी जिंदान की नजर कर रहे हैं। अब आप अपने प्यारे बेटे सलीम के साथ आराम से रह सकेंगी। बयासत, मुस्तफा को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है रुस्तम। मेरी औलाद खुद अपने लिए कुआं खोद रही है। शहजादे मुस्तफा ने भी ऐसी ही खता की थी। रियासत छोड़ आए थे और आका ने उन्हें पकड़ लिया, फिर भी पाया तक से सही सलामत वापस लौट गए। हाँ, वो सलामत तो चला गया, लेकिन मुस्तफा के आने से अली आका का सर कलम हो गया। इस बार किसका सर कलम किया जाएगा? हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा। आका के फैसले के मुताबिक बयाज़त को यहाँ से दूर भेज दिया तो हमारे हाथ पांव टूट जाएंगे। सलीम की हालत से तुम बाखबर हो। आका को इस सूरत हाल में सिर्फ एक ही शख्स रोक सकता है मलिका, वो सिर्फ आप हैं। हद से तजावुज कर गया। राजू कुछ हुआ उसके लिए माफी चाहता हूं वालिदा। बिल्कुल माफ कर दूंगी, लेकिन खुद को नुकसान पहुंचा रहे हो तुम। अपने बाबा से बहुत दूर होते जा रहे हो तुम बेटा। मेरी तमाम जिंदगी आका और आपकी मोहब्बत हासिल करने की कोशिश करते गुजरी, लेकिन मैंने जितनी भी कोशिश की आप लोग मुझसे उतने ही दूर हो गए। बयासत, तुम चाहे कुछ भी कहो, मेरी आंखों का नूर हो तुम। काश मेरे बस में कुछ होता। तखनशी कौन होगा ये इख्तियार अगर मुझे हासिल होता तो मैं कुछ कर पाती तुम्हारे लिए। मगर फिर भी आपने मुझे मनीषा भेजने की ख्वाहिश नहीं की। हाँ, नहीं की। इसलिए नहीं की क्योंकि मैं ये चाहती थी कि तुम्हें दुश्मनों से और उनकी साजिशों से महफूज रखा जा सके मेरे बेटे। और अब तुम्हारी ये हालत देखकर मैं बेसुकून हो रही हूं, लेकिन कुछ न कुछ करना होगा मुझे। आका को तुम्हें जलावतन करने से रोकने के लिए मैं हर तरह की कोशिश करूंगी, यकीन करो। लुकमान आका ख्वाबगाह में है क्या? नहीं मलिका। कहाँ है फिर? वो कुछ देर पहले बाहर गए हैं, मालूमात नहीं है। मेरे की सरबराही हमारी तरफदार को ही करनी चाहिए। हमें इस मौके से भरपूर फायदा उठाना चाहिए। बादशाह के बेशुमार रईस हैं, जो ज्यादा तजुर्बेकार होगा वो बन जाएगा। मुझे भी इसी बात का खौफ है मेहरबा कि अमीर बहर पाशा की तरह अगर दोबारा कोई हमारा दुश्मन आ गया इस जगह तो हमें महल में तोपों से दाग दिया जाएगा। रुस्तम हल कर लेगा वालिदा। देखती हूँ। मुझे दरअसल तुम दोनों की फिक्र है, तुम्हारी और रुस्तम की। वो क्यों? ये तो तुम बताओगी मुझे। सुना है कि तुम दोनों अलग कमरों में रहते हो। रुस्तम ने बताया है क्या? भूल रही हो तुम गालिबन। मुझसे कोई भी बात छुपी नहीं रहती है। वो काफी अरसे से परेशान है। मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच बदमज़गी हो। बुरा वक्त गुजर गया है,
उसकी सौजा की हैसियत से तुम्हें उसे हौसला देना चाहिए। इतने मसाइल के होते हुए हमें मजीद उलझने पैदा नहीं करनी चाहिए। मंजिल तो अबूर कर लिया है, इस दरिया की क्या अहमियत। बारबरू से एक अजीम अमीरुल बहर था, लेकिन आशिफ्ताए सर था। तुर्गत रईस ने भी जरूर कुछ सीखा होगा। आका को ये बात बखूबी समझानी होगी। सोकुल्लू ने आपके हुजूर बाज नाम पेश किए थे मलिका। बिल्कुल, वो सब के सब उस मनसब के लिए मुनासिब हैं। मैं भी तहकीकात कर रहा हूं, कोई नाम मुंतखब करके आपको जरूर मालूमात फराहम करूंगा। जरूरत नहीं है, मैंने एक नाम मुंतखब कर लिया है। सोकुलू महमद आहा समझदार और ज़हीन शख्स है। वो माजी में बहरिया के साथ भी रह चुका है और अहम बात यह है कि वफादारी का सबूत दे चुका है। वो सोकुल्लू कहां से आ गया मलिका? काफी दिनों से मैं उसके लिए सोच रही थी, और तुमने भी तो कहा था कि बहुत ताकतवर शख्स नहीं होना चाहिए। जी हाँ, लेकिन सबसे मुनासिब सोकुलू है, और सिर्फ मैं ही नहीं, आका भी तारीफ करते हैं उसकी खिदमत की। आज फिर तुमने बेयासत के साथ झगड़ा किया है। अपने भाई के साथ तुम्हें ये दुश्मनी अब हमेशा के लिए खत्म करनी होगी। ये बात मुझसे नहीं उससे कहिए वालिदा, क्योंकि मेरी रियासत में छुप कर आने वाला और आका से मेरी शिकायत करने वाला वही है। तुम भी कुछ कम नहीं हो उससे। बाबा को जो मकतूब लिखा था मालूम है। शहजादे बेयादत तशरीफ ला रहे हैं। वालिदा। बयासत। सलीम। आओ बैठो यहां। फिर कोई शिकायत की होगी तुमने शायद। ये तुम्हारी आदत है बेयाजत। मेरे सामने अपना गुस्सा बालाए ताक रखो। कौन हक पर है कौन हक पर नहीं, मुझे इसकी परवाह नहीं। आज शब ये फसाद खत्म होगा। जो कुछ भी हुआ है उसे खत्म करो, माजी में दफन कर दो। ये मुमकिन नहीं है वालिदा, आपने हमें फजूल में तलब किया। मैं पहली मर्तबा बेयाजत का हम ख्याल हूं वालिदा। जैसा कि आप देख रही हैं, मेरे इससे बात करना भी मुमकिन नहीं। वालिदा, मुझे इजाजत दें। बयाजत, तुमने सलीम को अपना हरीफ बना लिया है। देख रही हूं, लेकिन ऐसा मत करो, क्योंकि असल में तुम्हारा हरीफ शहजादा मुस्तफा है। किससे दोस्ती करनी है और किससे दुश्मनी अब तो सीख लेना चाहिए तुम्हें। मैं अपने दोस्त और दुश्मन को खूब जानता हूं वालिदा, आप इस मामले में दखल मत दें।